Hello guys, hi everyone. Today I'm going to start your second chapter. Actually, today I merged the two chapter here in accountancy and financial statement of FY BCom Sem 1, accounting standard 2 and inventory valuation. This chapter actually belongs to FY BCom Sem 1. This chapter actually saying the valuation of the inventory, how we evaluate our inventory calculation, how we calculate our inventory. Inventory means nothing but the stock. How we have to calculate inventory according to when we are selling the product in a market, when we are actually issuing our raw material to the factory, in the production department, each and everything. And of course here the man who is standing here, who is taking the valuation, who is calculating the valuation of inventory, is nothing but who's saying the storekeeper. By this I am starting your second chapter, and of course the fourth chapter, that is the inventory valuation. And here in this PPT, in this presentation, I merged these two chapters because of course they are very connecting with each other. First, I have to introduce myself. I am Professor Zakira Matwankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor and Head of the Department of Accountancy Department. I am starting with the introduction. The final account, as you know, mainly consists of profit and loss account and balance sheet, but profit and loss account ascertain the profitability of the organization, and balance sheet of course saying the position of the assets and liability on a particular date. While preparing this two statement, we will have to take into the consideration the valuation of the stock of the goods in the hands at the closing accounting period. Now this explanation is saying कि फाइनल अकाउंट के अंदर जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं एंड बैलेंस शीट करते हैं, इसमें जो है वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, net profit in the profit and loss account, and the balance sheet. By this balance sheet we have to calculate what is the valuation of asset, whatever the valuation of the liability, and of course this we have to calculate by these two statement. And this is of course here the valuation of stock is playing a very important role in the accounting period. Okay, so first I have to starting with the meaning. Accounting Standard 2 issued by ICAI is applicable from 1st April 1999 and define the inventory as an asset held for the sale in the ordinary course of the business. पहले हमारा जो meaning है Accounting Standard 2 जो है which is issued by of course ICAI, and it is applicable from 1st April to 1999. According to the definition, of course inventory is your asset. We have to write this stock जो है हम कहाँ लिखते हैं, असेट में लिखते हैं, और हमें डेफिनेशन ये कहती है फर्स्ट थिंग इज हेल्ड फॉर द सेल ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हमारा स्टॉक जो है हम मार्केट में सेल करते हैं बिकॉज ऑफ डूइंग द बिजनेस. सेकेंड, इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, हमको सेल करने के लिए इस स्टॉक को प्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग द सर्विसेज. ये जो है हमारा जो मटेरियल है हम उसको सप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन पर्पस. मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारा जो रॉ मटेरियल हम मार्केट से खरीदते हैं हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देते हैं ताकि हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑफ कोर्स फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट कर सके और हम प्रोवाइड कर सके सर्विसेज मार्केटिंग में. देन व्हाट आर द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन. हम stock valuation क्यों करते हैं, why it is so important. There are the 5 objective I am taking. First is ascertainment of correct profit or loss made during the accounting year. एक्चुअली हमको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, बिकॉज सी हमारा जो बिजनेस रहता है हम उसी जो हमारा स्टॉक है उसको कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में और वही मार्केट में बेचते हैं. सो हमको उसका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है और हम उसको मार्केट में जो सेल करते हैं उससे हमको क्या प्रॉफिट मिलता है. ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर वी आर डूइंग लॉस, वेदर वी आर डूइंग गेटिंग प्रॉफिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय दिस कैलकुलेशन वी कैन इजीली नो इट. देन डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमारा जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का हमको इसके थ्रू इजीली फाइंड आउट हो सकता है. अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो ऑफकोर्स वी आर नॉट एबल टू डू द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ आवर फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. Preparation of the correct statement of claim for loss of stock if any due to the fire, flood etc. अगर किसी तरह से हमारा स्टॉक का लॉस होता है because of fire, flood etc. ये जो है हम स्टेटमेंट इजीली
फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट इज नथिंग बट जो हमारा स्टॉक जो है हमारा ह्यूज क्वांटिटी में अगर कहीं हम भेज रहे हैं और जैसे हम अगर ट्रक भेज रहे हैं या कंटेनर भेज रहे हैं तो वो जो है हमारा एक तरह का जो पूरा लोडेड स्टॉक होता है उसको कंसाइनमेंट कहते हैं. तो हमारा कंसाइनमेंट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ दैट container or the consignment by this calculation. And determination, last is determination of the valuation of stock sold on or sale on return basis. Log sold on or sale on return basis means अगर हमारा प्रोडक्ट सपोज अगर नया है मार्केट में, हमने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, सो हम हमारे कस्टमर को जो है सेल और रिटर्न बेसिस पे भी बेच सकते हैं कि भाई अगर जितना स्टॉक बिकता है बेचिए, अगर नहीं तो यू कैन रिटर्न इट टू आवर स्टॉक. सो ऑफकोर्स ये करना पड़ता है बिजनेस में क्योंकि हमको मार्केट में हमारे पैर जमाने पड़ते हैं बिजनेस अच्छा करने के लिए. और ऑफकोर्स इनिशियली वी हैव टू डू इट, वी हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम बट वी हैव टू डू इट एंड देन only you will get the success. Then valuation of inventory is actually based on two part. First is your cost and second of course I'll tell you. First is your cost is calculating. First you have to on the basis of cost you have to calculate the purchase price. Next is your conversion cost and third is your other cost. Second part is estimated net realizable value. See cost जो है हमको पता है कि cost क्या होता है कि अगर हमने उसको मार्केट में खरीदा है तो that is purchase price. हमने उसको कन्वर्ट किया है वर्क इन प्रोग्रेस में और पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, पैकिंग किया है, तो यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह की जो भी कॉस्ट होता है ये सब उसमें रॉ मटेरियल में हमारा ऐड हो जाता है. दूसरे जो अदर कॉस्ट है जो हमारे लेबरर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वॉट एवर द अदर कॉस्ट इज, सो ये पूरा जो है हमारा कॉस्ट में आ जाता है. एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज कि हम जो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका एक्चुअली वैल्यू जो होता है उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं. जैसे सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो वी ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग द प्रॉफिट. नेक्स्ट इज What is the cost of conversion? मैंने अभी आपको एक शॉर्ट में बताया. Now I can explain you in a brief. Cost of conversion basically are two types. First is your direct cost or indirect cost. Direct cost which is related to directly to your product and indirect cost indirectly related to your product. Now how it is directly to your product? See, first is direct cost is direct material which is of course very important or a basic material for your product. Next आपके आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर, जो जिनके बिना जो है उनको वो स्किल लेबर होते हैं, वो उसके बिना जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता. दैट इज योर डायरेक्ट लेबर. एंड द थर्ड वन इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर प्रोडक्ट. सो ऑफकोर्स जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर मैंने एक लेक्चर में भी आप लोगों को वीडियो बताया था, जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैंने एक बिस्लेरी का एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि बिस्लेरी बनाने के लिए हमें जो है वाटर की ज़रूरत होती है. हाउ टू कन्वर्ट इट, जो हमारे लेबरर्स जो उसमें काम करते हैं वो हमारे डायरेक्ट लेबरर्स होते हैं और उसके ऊपर जो भी कन्वर्जन कॉस्ट आता है, मशीनरी का कॉस्ट आता है, वो सब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट. Now indirect cost is consist of indirect material, indirect labor, or of course indirect expenses which is consist of fixed production overheads and variable production overheads. सो यहाँ पर जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सी वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस और नॉट, आपका एक कॉस्ट जो है फिक्स होता है. वी हैव टू पे. सपोज अगर मैंने रेंट पर फैक्ट्री ली है और मेरा प्रोडक्शन हो रहा है ना हो रहा हो, हमको रेंट पे करना पड़ेगा. सो दैट इज अ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स. एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विच इज रिलेटेड टू योर आउटपुट. आपका जितना काम होगा आपका उतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. सी, fixed production overheads are based the rate per unit computed on the basis of normal capacity and this is based on the actual per unit. तो उसी तरह से जो है हमको calculate करना पड़ता है. Next is your inventory system. First, there are the two principal system of determining the inventory. First is periodic inventory system. What is the periodic inventory system? Under this method, valuation of stock is decided by physically counting the stock at the end of the accounting year.
इस मेथड में जो है मोस्टली स्टॉक फिजिकली एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक लिया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है. इन द लार्ज साइज एंटरप्राइजेस बिकॉज ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस स्टॉक टेकिंग में बी टेक इन 1 वीक. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, अगर लार्ज टाइप ऑफ अ बिजनेस है तो ऑफकोर्स स्टॉक टेकिंग जो है वीकली भी होता है. इन सच अ केसेस परचेज एंड सेल आर सस्पेंडेड फॉर अबाउट 1 वीक. और उसी मतलब 1 वीक में ही जितना हमने सेल किया है परचेज किया है उसी वीक में हमको कैलकुलेशन मिल जाएगा. Purchases are recorded at cost and sales are recorded at the selling price and hence the stock has to be ascertained by the actual stock taking. ठीक है, तो इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है. There are the 2 types methods are involved. Count the item physically. Certain items can be weighted in kilos or tons or in liters. हमको physically check करना है what is the weight of the product, what are the weight of the stock. Then the items counted are listed, price and added. मतलब हर एक कितने हम items हैं हमारे stock के, हमको उसको count करना है और हमें उसकी price देखना है और inventory जो है उसकी valuation find out करना है. This is the periodic inventory system. Now the second is the perpetual inventory system. Here it is a system of record maintained by controlling the department which reflect the physical movement of the stock. यहाँ पर जो है physical movement of the stock हमको मालूम पड़ता है current balance का. It require continuous record. Every day का record जो है यहाँ पर calculate होता है इस method में. कितना stock आ रहा है, कितना जा रहा है. Inflows मतलब आना, outflows मतलब जाना. Inventory each and every item. The inventory account is uploaded after each purchase एंड सेल. रोज जो है आपका कैलकुलेशन होता है जिसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं. यहाँ पर डिस्टिंक्शन के थ्रू मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करी जिससे आपका जो डाउट है पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का क्लियर हो जाएगा. इट इज बेस्ड ऑन अ फिजिकल वेरिफिकेशन. पीरियोडिक में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है. दिस इज अ बुक रिकॉर्ड. जितना स्टॉक आता है हम लिख लेते हैं, जाता है हम लिख लेते हैं. सेकेंड, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल पीरियोडिकली. यहाँ पर जो है हम पीरियड वाइज, जैसे मैंने कहा कि ईयरली या वीकली या मंथली हम जो है स्टॉक लेते हैं. देन इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक एंड कॉस्ट एंड ऑफ सेल कंटिन्यूसली. हम इसको कंटिन्यूसली स्टॉक टेकिंग करते हैं इसका. इट डिसाइड स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज रेसिड्यूअल फिगर. यहाँ पर जो है हमारी स्टॉक की जो वैल्यू होती है, हम जो वैल्यू हमें फिजिकली दिखती है हम उसी को रेसिड्यूअल फिगर लेते हैं. और इट डिसाइड द स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ बैलेंसिंग फिगर. मतलब हम यहाँ लेस करके इसकी बैलेंसिंग फिगर जो लाते हैं वो हमारा स्टॉक वैल्यू होता है. It is simple and less costly, of course, doing periodically, that's why, and it is costly method because it is doing every day. It does not facilitate inventory control. यहाँ पर inventory control के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि periodic time रहता है. It is facilitated inventory control. यहाँ पर हमारे daily basis पर movement पर हमारा ध्यान रहता है inventory का. So, of course, you can control your inventory. It requires suspension of business activity for counting the stock. And it does not affect the operation of the business activity. So these are the simple distinguish you can analyze what type different types of the system. Next is average cost method. Under this method the stock is valued at the average of the price at which the goods are purchased at a different times. हम जो अलग डिफरेंट देखिए मार्केट ऐसा होता है कि मोस्टली प्रोडक्ट की गुड्स जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है ऑलवेज जो है वे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम. तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी स्टॉक अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और रोज़ हम उसकी प्राइस बदले तो ऑफकोर्स कोई भी कस्टमर हमारा नहीं रहेगा और कोई भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. जैसे डेली बेसिस पे हम जो मार्केट में प्रोडक्ट जैसे सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्लक्चुएट होते हैं, वी आर एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर आप कोई मार्केट में सोप लेने जाए या अगर आप कोई शैम्पू लेने जाए और उसका प्रोडक्ट का प्राइस रोज़ चेंज होता जाए विच इज पेग्ड, सो ऑफकोर्स अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई आज इतना है आज उतना है. सो ऐसी बेसिस पे हम के एवरेज कॉस्ट मेथड बहुत काम की चीज़ है. यहाँ पर 2 टाइप्स के देखिए. पहले वेटेड एवरेज प्राइस विच इज परपेचुअल इन्वेंट्री बेस पर है ये. फर्स्ट, weighted average price is calculated dividing the total cost of the unit in the stock by the number of the unit in the stock. मतलब total value of the stock और उसके units से उसको divide किया जाता है. See, this is the formula. Total units on hand and टोटल जो हमारे टोटल प्राइस है हैंड में और यहाँ पर इसके यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर प्राइस है और टोटल यूनिट्स आएगा यहाँ पे. Now this method is more effective than the simple average method and it is suitable where the price fluctuate frequently
for costing purpose, but for the stock valuation for financial account the method is not suitable when price are declining. लेकिन ये जो है of course prices मैंने अभी आपको बताया कि which is very important, और कभी भी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ये मेथड सुटेबल नहीं है जब हमारा प्राइस जो है ज़्यादा रिड्यूस हो जाए. वेटेड एवरेज मेथड पीरियोडिक इन्वेंट्री में आ जाता है हमारा. दिस मेथड इज मिडिल कोर्स बिटवीन फीफो एंड लीफो मेथड. फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. ऐसी कंपनी जो अपना पहला स्टॉक बना होता है वो फर्स्ट मार्केट में देती है, दैट्स फीफो. और ऐसी कंपनी जो लास्ट देती है, यानी फ्रेश स्टॉक पहला बेचती है और पुराना, मगर वैसे अभी ये एप्लीकेबल नहीं है लीफो, बिकॉज ऑफकोर्स अगर हम पुराना माल रखे रहेंगे तो वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा. सो लीफो इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्टॉक वैल्यूएशन. So the cost to be assigned to the stock is decided by applying average cost to the stock. Average cost is calculated by dividing the total cost of the and the number of unit. Under this method, weighted average cost inventory is calculated by the following formula. This is, देखिए, opening stock purchase in rupees and opening stock purchase in units. तो यहाँ पर जो है आपका valuation आ जाएगा perpetual inventory system में. Next is first in first out, that is FIFO. FIFO मतलब this method is assumed that material are issued for consumption in the same sequence as that in which it is received. मतलब जैसे हमें गुड्स आता है वैसे कंजम्पशन होता है, और जैसे जैसे कंजम्पशन होता है वही स्टॉक जो है मार्केट में बिकेगा. तो जो पहला कंज्यूम होगा वो पहला बिकेगा, जो बाद में वो बाद में होगा. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस thus the rate applied the earlier received material in the stock is the basis. Consequently, the material in stock is valued at a price and later receipt, and thus the stock is valued at the current or the latest purchases. हमारा stock जो है इसी पर बेस करता है, latest purchase पर. When this method is used, it is necessary to keep a record quantity and the value of every receipt. That is very important. जैसे जैसे हमारा स्टॉक आता जाएगा हमको उसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. मेन एडवांटेज जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो के, दैट इज इट इज सिंपल इन कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑल्सो. इट इज लॉजिकल, ऑफ कोर्स इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज फैसिलिटेड इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन. हम फॉर्म के अंदर और फॉर्म के और हमारे फॉर्म को दूसरे फॉर्म से जो है कंपेयर करके भी हम ये कर सकते हैं फीफो मेथड. एंड द प्राइस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट एंड नॉट ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट पे ये कैलकुलेटर हम एस्टिमेट करके सिर्फ बता नहीं सकते कि इतना होगा. स्टॉक वैल्यूएशन इज वैल्यूड एट अ करंट प्राइस. इट इज सुटेबल व्हेन प्राइस आर फॉलिंग एंड द रेट ऑफ द कंजम्पशन इज स्लो. अगर स्लो है हमारा कंजम्पशन तो ऑफकोर्स इट इज सुटेबल. Then valuation of inventory and cost of finished goods are consistent. Now what is the disadvantages? Cost of production is not linked with the current price. See, cost of production और current price का कोई लेना देना नहीं होता. So यहाँ पर इसका ये एक disadvantages है. Then cost in under stated, it become complicated to price return on material. जहाँ पर ये complication करता है कि अगर हम देखें कि material का return कितना हो रहा है, so of course it become a complicated. हम totally calculate नहीं कर सकते properly. Issue are priced differently and comparison become meaningless. So these are the disadvantages of FIFO method. इन्वेंट्री वैल्यूएशन मोस्टली जो है हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज. मैंने कहा कि लीफो जो मेथड है बहुत सी कम इंडस्ट्री अभी यूज़ करती है. यू कैन से मोस्टली फैशन इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज मोस्टली कभी कभी करती हैं, बिकॉज जैसे जैसे उनके न्यू प्रोडक्ट आते हैं वो मार्केट में लॉन्च करते हैं. सो बिकॉज फैशन इंडस्ट्री आर ड्रास्टिकली चेंजिंग एवरी टाइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीफो मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है. बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है और उनके जो ओल्ड स्टॉक है मोस्टली वो सेल में निकाल देते हैं. सो लीफो जो है मोस्टली एलिमिनेट किया गया है, बट सम कंपनीज आर जो है वो ऑफ कोर्स ट्राई करती हैं कभी कभी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज stock record. How we record our stock? Stock record consists of the bin card and store ledger account. Now what is a bin card? On the receipt of goods, the storekeeper make necessary entries in the document known as bin card. Necessary entries जो है स्टॉक की जो कार्ड में लिखी जाती है उसको bin card कहते हैं. bin card record the movement of material from and to store. कहाँ से आ रहा है मटीरियल और स्टोर में कब हम उसको कर रहे हैं गोडाउन में स्टोर. ये जो है पूरा रिकॉर्ड हमको बिन कार्ड से मिलता है. दिस डॉक्यूमेंट इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर. ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज मेंटेनिंग द स्टॉक रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड अ स्टोर कीपर.
in his store to assist him to control stock. It appear as follows. देखिए बिन कार्ड कुछ ऐसे दिखता है. This is the performer. इस तरह से जो बनाया जाता है जिसमें रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, गुड्स ऑर्डर, ऑडिट नोट सब रहती है, कंपनी का नाम. सो दिस इज द फॉर्मेट. नाउ द नेक्स्ट इज योर स्टोर लेजर. स्टोर लेजर क्या होता है? इट इज मेंटेन बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. इट इज यूजुअली मेंटेन इन द लूज लीफ और कार्ड टाइप और ईच अकाउंट प्रेजेंट इन द आइटम ऑफ द मटीरियल. ये जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है मेंटेन करता है स्टोर लेजर. यहाँ पर ये कार्ड टाइप भी होता है और हर आइटम जो है मटेरियल के इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं. इट इज़ मेंटेन इन ऑर्डर to ensure the correct store accounting. It shows quantity and valuation of material. यहाँ पर कितनी quantity आई, उसका वैल्यू क्या है, टोटल quantity valuation पूरा होता है. एंड दिस इज द स्टोर लेजर अकाउंट. डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस. ठीक है, जिसमें क्वांटिटी, रेट और वैल्यू सब में होता है. दिस इज अ कॉमन थिंग एंड ऑफ कोर्स यही स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में आपको करना है. स्टोर लेजर अकाउंट यू हैव टू मेंटेन बाय FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. ओके, so I hope you understand each and every part of the accounting standard 2 and the stock valuation. If you have any doubt, please let me know. If you have any doubt, please write in a comment box. Definitely I'll correct, I'll solve your doubts. Thank you. Have a nice day. Have a nice time. Bye everyone.